and I was on a call with my friend and I cut their call. I was like बाद में call करता हूँ मैं. I think ये IG editor को call है and ऊपर लिखा होता मुंबई का. Was it I didn't touch any book, any single reference book I didn't touch at all because time ही नहीं था मेरे पास. I had to watch 180 lectures in 2 months because there were days where I was studying 14-16 hours a day, sleeping 3-4 hours in a night. 14 hours a day for CUET. हाँ जी सर, because मेरे को realize हो गया था I am at a very disadvantage sir. If you want to take one suggestion from this entire video from me, it would be कि मेरे जैसे बिल्कुल नहीं बनना. नवंबर दिसंबर तक तो करना ही नहीं बिल्कुल. अभी ही चालू करो, कुछ लेट नहीं हुआ. So what I did is I summarized that big book into this little small book जो कि 50 पेज का आसपास है. So value for money that we get in your course is unmatched according to my opinion. Not only because of the lectures and the material and the notes you provide, it's also because of the one-to-one guidance. So hello everyone, this is Navneet Misra from Navinomics, and today we have Pranav. The best part about Pranav is that he was waiting for the IGIDR call, and on the auspicious day of his birthday he got the call. So it was the double dhamaka. So many congratulations as well. Belated happy birthday Pranav. Thank you so much sir. Like you said, I have been waiting a long time for the call. ऐसे लग रहा था कि कभी कॉल आने नहीं वाला. इतना क्लोज होके भी मतलब इतना दूर होने वाली बात हो गई थी. And that was your priority, right? आप IGIDR ही ज्वाइन कर रहे हैं, right? It is sir. I have decided that I am joining IGIDR. So yeah, so just give a brief about your background and how you come to know about us and how journey so far about CUET PG Economics. You come in top 100, so that's really a remarkable year. Yeah, please. Yes sir. Sir, in short, my journey was short, but it was very intense. Okay. So I would say my name is Pranav Nair. I'm 21 years old. I graduated from Jai Hind College in Mumbai from doing a Bachelor's of Arts. I majored in economics. So basically my journey started in November 26th. I remember the date vividly. Okay. Because what happened is that I am preparing for UPSC also. Okay. So till October of 2025, I was preparing full on for UPSC. And I talked to a few people. I talked to a mentor of mine in UPSC, and he said that if I want to write CUET, the syllabus of UPSC civil services should be enough for me to cover CUET. So I was in that frame of mind that if I prepared for economics, my CUET will automatically get covered. Okay. So eventually, when I started doing my economics in my UPSC, and I correlated it with the syllabus of CUET, I got to know that it's not covering as much as I wanted it to. So I decided that I had to take an entire separate course for economics, and then I had to prepare full on for it. So how I got to know about Navinomics is that when I was actually researching about CUET syllabus is cut off, literally the first video I saw on YouTube was yours, sir, about the PECS cut off and what colleges are good and what not. And I had no idea about what colleges were good for Masters in Economics. So yours was the foundation that I built on. And after when I was searching for good institutions to join, I searched a lot of courses and I watched a lot of demo lectures. But in the end, sir, they were charging a ridiculous amount of fees, and it made no sense for me for just to study for 3-4 months and for me to spend 40, 50, 60,000. Because it's not worth it in my opinion. So November 26th, I watched a few of your demo lectures and I realized that this is going to be it. I have 3 months. You had 180 lectures at that time, I think. Nearly 180 lectures. So March 27th ko exam was, so nearly 4 months was enough. Yes, sir. I had 180 lectures at that time. I decided that today is going to be the day. I paid the fees and I started at that day only. So that's how my journey started. So like when I understand that being an UPSC aspirant, it's always advantageous. But एक जो self doubt आता है, will I be able to complete? Because it's very obvious ना कि who can ensure or how it is possible कि 180 185. If I'm not wrong, it was there nearly 185 lectures, right? In the course. So it's a very logical and it's very human tendency कि developing a kind of confidence and having self doubt, like both are contradictory, but also you kept motivated yourself. So how you did it? Sir, so I'll be quite honest. When I started in November 26th, the deadline for the JAM and GATE exams had already passed. So I realized that those were out of my options. As well as ISI hadn't started yet, but I saw its syllabus and I realized that in 3 months it's going to be impossible for me to complete its syllabus. So basically CUET was my first and the only destination I could go to. So I paid the crash course fees on 26th November. And I had those 2-3 days in the beginning कि like कैसे होगा, अब नहीं होने वाला, 180 lectures है.
I had a few friends who were giving CUT and they were preparing since May or in January and February. January, February. So for me to have that 1 year gap, I initially had those 2-3 days of like अब नहीं होने वाला. The best I can do is just a good state college or something like that. पर ये DSC IGIT तो खा गया. तो वो 2-3 दिन solid 2-3 दिन था. But then I realized कि एक काम करते हैं, let's not focus on the end goal. True. Let's just focus on what's in my hand. Let's just focus on the preparation part of it. Let's finish as fast as it's possible, and then just keep revising and revising and revising until it's set in my mind कि ये word है, ये page पे ये line पे यही word आएगा करके. So that's what I did. I just prepared until all the self doubts were removed from me. Yeah, that's really very motivational for those people who think कि यार अब नहीं होने वाला है, अब मैं क्या करूँ. And if I'm not wrong, Pranav was like that student who think कि चलो मुझे मतलब इतना क्लैरिटी था कि मुझे कहीं एडमिशन नहीं लेना है. He was very sure since day one. I remember सर मुझे IGDR ही जाना है. एंड बैकअप में था JNU DSC ठीक है, वहाँ दिल्ली है, UPSC है. सो दिस मच क्लैरिटी इफ़ यू हैव देन डेफिनेटली यार कि टॉप ही वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन वाली बात. यूजुअली पीपल प्लान के ठीक है चलो गोखले हो जाए, HCU हो जाए, BHU हो जाए, कहीं भी हो जाए. सो यू हैड वेरी क्लियर माइंड सेट कि वेयर आई वॉन्ट टू लैंड, राइट. तो सो जैसे एग्ज़ाम, सिलेबस, पेरेंट्स, फैमिली, लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो वो जो जब आपका रिजल्ट आया, आई अंडरस्टैंड कि IGDR में काफ़ी कंपटीशन है, एक एक दिन वो जो तो exactly. वहाँ से जो कॉल आया बड़ा अच्छा लगा होगा. एंड यू जस्ट इन्फॉर्म मी, यू ऑल्सो टोल्ड योर पेरेंट्स एंड ऑल. सो हाउ वाज दैट फीलिंग? सर IGDR को मैं डिटेल में बताता हूँ. IGDR का सीट्स 32 दिस ईयर एंड DSC का 59 दिस ईयर. सो स्वाभाविक सा ही मैंने सोचा था कि मुझको DSC मिलने वाला, IGDR तो मिलने से रहा बिकॉज हाफ द सीट्स थे. तो इनिशियल कट ऑफ भी वैसे ही जा रहा था कि DSC का 189 था, IGDR का 196 था. एंड मेरे सामने अराउंड 40 लोग और थे वेटिंग लिस्ट पे. सो आई वाज लाइक हो ही नहीं सकता, IGDR मिलने ही नहीं वाला. मैं वो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में जा चुका था जहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि DSC मिलने वाला, दिल्ली शिफ्ट ही होना मेरे को, तो मेंटली रेडी रहता, प्रिपेयर्ड रहता हूँ. पर अचानक से फिर ऐसे ग्रुप में टेक्स्ट आने लग गया कि 30 वेटिंग लिस्ट में आ गया, 19 वेटिंग लिस्ट में आ गया, एंड अगले दिन आ गया कि 35-36 वेटिंग लिस्ट में आ गया. एंड आई वाज लाइक अरे अभी तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, मैं अभी पूरे कहाँ चालू करेंगे. एंड फिर मैं वो स्टेट ऑफ माइंड में आ गया था कि अभी तो IGDR ही मिलना है. फिर एक और शॉक लगा कि 36 आ गया, तो मेरे को लगा नेक्स्ट राउंड मेरा आ ही जाएगा. इतना 36 तक पहुंच के 2-3 और क्या ही बात है. तो अगले दिन मैं फुल ऑन रेडी था. मैं बस मोबाइल फुल रिंगटोन पे रखा हुआ था, मैंने बाजू में ही रखा, मैंने चार्ज भी नहीं रखा मोबाइल, क्योंकि चार्ज पे रख लिया मैंने तो फिर रिंग आ गया, मिस हो गया तो क्या कर सकते. तो पूरा दिन 9 to 5 मैं मोबाइल पे देख ही रहा था. एंड मेरे पहले जो 38 वाला रैंक था उनसे मैं कॉन्टेक्ट पे था. उन्होंने बोला मेरे को कॉल आ गया 11 बजे, उन्होंने बोला सुबह के. तो 11 से लेकर 5 तक मैं कॉल पे रखा था, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा. हर बार जब मेरे फ्रेंड्स फैमिली कॉल करते थे पूछने के लिए, आई वाज लाइक क्यों कॉल कर रहा है, मेरे को IGDR का वेट कर रहा हूँ, आने के बाद कॉल कर लूंगा. तो पूरा दिन वही था. एंड जब नहीं आया कॉल तो बहुत हताश और निराश हो गया सर, बिकॉज अभी मेरे को लगा था कि अब नहीं हो रहा, क्योंकि इतना पास आके इतना नहीं होना. अगर होना होता तो आज ही हो जाता, नहीं हो रहा तो मतलब किस्मत में नहीं है. तो फिर वापस वही फ्रेम ऑफ माइंड में चला गया था कि नहीं अब तो नहीं हो रहा. एंड ऑन द सेम डे यू हैड बर्थडे सेलिब्रेशन. हाँ जी. तो वो था आई थिंक 9th को, एंड 2 दिन बाद मेरा 11th को बर्थडे था. तो मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा था, एंड आई वाज इन द ट्रेन, आई वाज गोइंग टू मीट माय फ्रेंड्स. एंड तभी ही मेरे को ट्रेन के बीच में कॉल आता है, एंड आई वाज ऑन कॉल विद माय फ्रेंड एंड आई कट देयर कॉल. आई वाज लाइक बाद में कॉल करता हूं मैं, आई थिंक ये IGDR का कॉल है. एंड ऊपर लिखा हुआ था मुंबई करके, तो मैं तो समझ गया कि शायद IGDR कॉल है. तो मैंने कॉल उठाया, उन्होंने बोला IGDR से हम आप लेना चाहते हो एडमिशन. आई वाज लाइक यस आपके इसमें इंतजार ही कर रहा हूं, भगवान भेज दिया. चाहते भगवान ने गिफ्ट दे दिया. तो यार रियली लाइक इट वाज कम्प्लीटली वो मूवी और वेब सीरीज वाला था, एक शॉर्ट मूवी बन सकता था. आई अंडरस्टैंड बिकॉज एवरीथिंग. एंड द सेम डे इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था. यू टेक्सटेड मी कि सर टेस्ट मैच जैसा मेरे साथ हो रहा है. एग्जैक्टली. एंड सर जैसे टेस्ट मैच 5 दिन का नहीं चलता, वैसे ही मतलब 5 दिन नहीं बोल सकते, 1 महीना चल गया तो IGDR का. हर दिन पेशेंस टेस्ट हो जा रहे थे. एंड जब फाइनली जब सब उम्मीद ही छोड़ दी थी तब जाके मिल गया. तो टॉप 100 अपने आप में मतलब इतना तो गारंटी है आपको कॉल और DSC. सो माइंडसेट था कि मतलब अब दिल्ली में रहना है, बट गॉड हैज सम डिफरेंट प्लान एंड यू आर हियर. पूरा प्रिपेयर्ड सा था, मेंटली फोकस था. मैं एक्चुअली PG's हॉस्टल भी ढूंढने लग गया था दिल्ली में कि ये अच्छा रहेगा, यहाँ पे रहेगा. हाँ, यहाँ तक मामला पहुँच गया था. हाँ जी सर, मैं पूरा प्रिपेयर्ड सा था कि अगर जाना पड़ा तो सब रेडी रखेंगे करके. अच्छा. फिर किस्मत के लिए कुछ और. तो बट या डेफिनेटली यार वो बिलीफ है. प्रणव, मैं थोड़ा अब हम पीछे जाएंगे स्पेशली फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं. एंड इट्स नॉट ऑब्वियस फॉर एवरीवन कि 3-4 मंथ्स में वो प्रणव की तरह कर पाएँ. एंड यू हैड एडवांटेज ऑफ UPSC.
तो इफ़ यू थिंक फ्रॉम द जनरल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी जस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या जस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं, सो फॉर दैम इट्स अभी 6-7 मंथ्स रिमेनिंग हैं. अभी हमारा मिड ऑफ जुलाई चल रहा है, लाइक फरवरी में भी एग्ज़ाम होता है IITs वगैरह के, और मार्च में भी होता है, तो 6-7 मंथ्स हैं. तो उनको क्या लास्ट में प्रिपरेशन करना चाहिए? अभी उनको अपना CUET छोड़ देना चाहिए? ये जो डायलेमा है, लोग अभी देख रहे हैं कि क्या कट ऑफ जा रही है और कहाँ कॉलेज अच्छे हैं, वो भी उस मूड में है, वो जून जुलाई वाला मानसून में चल रहे हैं. तो व्हाट विल बी योर डिटेल्ड सजेशंस फॉर देम? Sir, if you want to take one suggestion from this entire video from me, it would be कि मेरे जैसे बिल्कुल नहीं बनना. नवंबर दिसंबर तक तो करना ही नहीं बिल्कुल भी. अभी ही चालू करो, कुछ लेट नहीं हुआ. ऐसा मत सोचो कि फरवरी मार्च में चालू करते होता. जुलाई भी बहुत है, पर नवंबर दिसंबर तो बिल्कुल ही मत करना. बिकॉज सर, if one thing that I would redo from my own preparation was that I didn't touch any book, any single reference book I didn't touch at all because time ही नहीं था मेरे पास. I had to watch 180 lectures in 2 months because revision भी करना था, re-revision भी करना था, वो सब करना था, mocks सब देने थे. तो मैंने 180 lectures 2 months में देखे. तो obviously मेरे पास reference book के time ही नहीं थे. So you just go through the lectures, you did not read book. Not really, I can't believe, yaar. I suggest to read books in all the videos if you remember. I know, sir, and I would also suggest to read books in every single topic you do, because in the end, इस बार का CVT paper was such that it helped in my way of preparing. But if I had to redo it, I would do it from July, June, and I would read every single book that you refer to, because that's the way you can get extra knowledge. Like CVT में से जो in-depth question थे, वो book से directly quote करके दिए गए थे, and मैंने वो छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था. मेरे को लगा था सारे आंसर सही हो सकते हैं, पर जब आपने वो स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप पे, तब मैंने रियलाइज किया ये तो डायरेक्टली बुक से आ गया था. So if I had read the book, I would have gained even more knowledge. Yes, exactly, sir. वही वाला. So one advice I would give is start right now. Watch all the videos, refer to all the books, and start doing your PYQs and your mocks. Start doing your PYQs as soon as possible. Because जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम notes लिख रहे हो, you don't know how much knowledge you have gained. You just know that I have watched the lecture, I have written so and so thing. But until PYQ लिखेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कौन से level पे हो. तो PYQs are the baseline for everything you do in CUET. So yeah, that's what I would suggest. तो प्रणब, बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा. इवन इन आवर बैच 400-500 स्टूडेंट्स वर देयर, एंड पीपल लाइक यू स्पेशली हु स्कोर्ड 170s 80s, दे वर वेरी श्योर कि मैं कहीं ना कहीं अच्छे जगह पाऊँगा. बट इफ़ यू रिमेंबर, मैनी ऑफ दे वर जस्ट होपलेस, और एग्ज़ाम का पेपर थोड़ा वो डिफरेंट माइंडसेट का गेम था. दिस एग्जाम कम्प्लीटली UPSC पेपर, पैटर्न, एलिमिनेशन एंड ऑल. पीपल वर हार्डली स्कोरिंग 100, 120, 130, एंड सैडली लाइक उनका शायद टॉप कॉलेजेस में नहीं हुआ होगा या नहीं होगा. तो ऐसा रिपीटेशन या फिर ऐसा मतलब चीज़ें और भी फ्यूचर में हो सकती है. सिमिलर काइंड ऑफ पेपर ऑफ पैटर्न, आप मैथ स्टैट्स पूरा पढ़ के जाए और वहाँ पे कुछ और ही आ गया, माइक्रो पढ़ के आए. बट स्टिल आई वॉज टॉकिंग टू द अर्नव एंड ऑल कि ही टोल्ड कि सर, इफ़ यू गो थ्रू द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे तो बुक्स लेक्चर से भी मतलब आराम से 170-80 लाया जा सकता था. नो नीड टू पैनिक और वो फोमो में नहीं जाना है, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, बिकॉज यू हैड योर ओन डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लेस टाइम. बट दैट डिसएडवांटेज टर्न टू बी द गुड फॉर यू बिकॉज यू गॉट इनटू IGIDR एंड कम इनटू टॉप 100. So that he did not suggest. But one thing I want to just ask you, for like from your point of view, so what extra thing you have done? I believe lectures was there, and definitely we are just a facilitator, not everybody has the same thing कि questions वहीं से आएंगे. Question came, I also saw questions came, but what extra thing or the unfiltered or the hidden talent people से कि ये मेरे पास था जो शायद काम किया, क्योंकि सेम लेक्चर, सेम नोट्स, सेम बुक्स, पीपल हु हैज़ डन 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर का ये कोर्स होता है, पीपल वॉच, पीपल गो थ्रू ऑल द वे, बट यू हैव डन इन 3-4 months. तो व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव डन? Sir, I'll tell you my 3 months का preparation, how it was 4 months का preparation, 4 months का, yeah. So I started from November 26. So मेरा goal था कि 180 lectures है. If I watch 4 lectures every day, that I should be able to complete it in 2 months. Around 2 months, 40 उतने में हो जाता था. हाँ, तो मेरा गोल ये था कि जो Jan mid तक मेरे को सब खत्म करके रखना, एंड बिकॉज फिर एंड सेम्स भी आ रहे थे मेरे दिसंबर में. तो मैंने थोड़ा और बफर दे दिया था. अच्छा, आपका गैप नहीं है? नहीं, मेरा गैप तो बिल्कुल नहीं है. No, like I am meeting, I think second or third guy.
आप था, अदर्स का भी गैप नहीं था, बिकॉज दिस CUT हैज बिकम लाइक UPSC एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट व्हेन योर एंड इज IGDR एंड DSA. अर्नब का था, कुशाग्र का था, अवंतिका का था. आई मेट लॉट्स ऑफ पीपल एंड आई सॉ लॉट्स ऑफ वीडियो जो कि टॉप 10 टॉप 20 में थे, ऑलमोस्ट दे हैड गैप. So you are great. Like it's nowadays UPSC is, you know, this CUT is allowing me to salute you without gap getting into IGDR. Yeah, sorry to interrupt. Yes, yes. Even if someone is in the final year and they are starting in July, I genuinely believe it's very possible you can get into DSA IGDR. The only thing that you need to do is have grit, discipline, and motivation to study a lot of time. Like, forget about every extracurricular activity, forget about going out, forget about everything else. Just focus on what you can control, which is studying. So, like I was saying, my preparation was, I started in November 26th, and by Jan 28th or 26th, I had finished my lectures and I had made my first batch of notes. I actually have my book of my first batch of notes, which is इतना बड़ा सा book था, एक 500 पेज का पूरा book बन गया था. इसमें सारे lectures के notes हैं. हाँ जी सर, वो पूरा कैटेगराइज्ड है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइक्रो मैक्रो ऐसे करके. तो जनवरी 20th तक मेरी ये फर्स्ट रीडिंग हो गया था. सो उसके बाद आई स्टार्टेड माय सेकंड रीडिंग, माय रिवीजन ऑफ इट, एंड वो मेरा फरवरी फर्स्ट वीक तक हो गया था. तो उसके बाद आई रियलाइज कि ये जो बड़ा सा बुक है, इट हैड अ लॉट ऑफ अननेसेसरी कंटेंट इन इट, क्योंकि वो लेक्चर पढ़ते पहले जब लिखता हूँ तो थोड़ा अनफिल्टर्ड सा भी आ जाता है. तो व्हेन आई फिनिश माय सेकंड रीडिंग, आई पुट PYQs एंड आई रियलाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं. सो व्हाट आई डिड इज आई समराइज दैट बिग बुक into this little small book जो कि 50 पेज का आसपास है. अच्छा. तो बेसिकली मैंने वहाँ पे मूवी था और यहाँ पे ट्रेलर हो गया. हाँ जी पूरा वो शॉर्ट समराइज करके रख दिया था. True. तो फिर वो छोटा बुक बनाया मैंने एंड वो खत्म हुआ था अराउंड फरवरी थर्ड वीक का. तो अभी छोटे बुक को ही मैंने अराउंड 2-3 बार पूरा पढ़ा अंटिल जब CUT ना हो जाए. तो वो एक था मेरी बात कि इतने बार मैंने पढ़ा, इतने बार मैंने नोट डाउन किया, मार्किंग ऐसे किए मैंने अलग अलग कलर से, ताकि मेरे को पता चले कौन सा फर्स्ट रिवीजन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी सर. So the one thing that separated me from the rest is I just studied for as long as I can, for as much as I can. There were days where I was studying 14-16 hours a day, sleeping 3-4 hours in a night. 14 hours a day for CUT. हाँ जी सर, because मेरे को realize हो गया था I am at a very disadvantageous position because people have been studying for 1 year, 2 years even after taking gap, and I had just 3 months. So the one thing I can do is just study as much as I can. तो 14-16 घंटा weekends पे तो आराम से हो जाता था. यार कहाँ से मोटिवेशन आता था भाई? मतलब आई वाज आल्सो UPSC एस्पिरेंट एंड 14-16 आवर्स. सो लाइक व्हाट वाज द मोटिवेशन यार? मतलब so the motivation was just कि after CUT is over, I should be able to look at myself and be like, अगर तुझको कोई college नहीं भी मिला, it's not because you did something wrong, it's because I hadn't started before. I gave my 100%, I worked hard, and I could look myself in the mirror and I can say that I did my best, and नहीं हो पाया because it was out of my control. तो वही था सर. Very good. The clarity of thought you have, and why I'm asking, you are from Mumbai. You have that 20s wala bhi age, you have friends, you have college, and there you are putting 14 hours, 15 hours. So that was really interesting to know ki how did you avoid all the distractions and the commitments you have. So how did you manage that? Sir, firstly I have no social media at all. I have never downloaded Instagram in my life. I have never downloaded Snapchat or any other thing. I keep downloading and uninstalling Twitter because वो news देते रहते हैं. बट अभी मैंने वो भी अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि वो बहुत रबिश चीजें दिखाते रहता है. सो द ओनली सोशल मीडिया पर से आई हैव इज WhatsApp टू टॉक टू माय फ्रेंड्स and LinkedIn to talk to my seniors and for professional commitments. And Telegram also I downloaded only after joining Navinomics because वो batch के बातें होती रहती थी. So that Telegram was fruitful. It was not rubbish. Of course. So मेरा शेड्यूल ऐसे बन गया था, जब मैं पढ़ लूँ ना सोने के आधे घंटे पहले I just scroll through Telegram and see कि क्या क्या डाउट आए, can I solve the doubt myself. किसी ने कोई टेक्स्ट के रेफरेंसेस भेजे, किसी ने कुछ नोट्स भेजे, इज इट यूजफुल फॉर मी, मेक अ सेपरेट फोल्डर फॉर इट ऑन द लैपटॉप. एंड वो आधे घंटे का एक रिचुअल सा बन गया था कि टेलीग्राम इज वेरी हेल्पफुल. तो वो था. एंड इसके अलावा सर आई हैड अ फ्यू अदर कमिटमेंट आल्सो कि जो 3 महीने के स्पैन में बहुत सारे बर्थडे पार्टीज मिस हुए, बहुत सारे दोस्तों से मिलने मिस हुए. आई हैड लिटरली प्लान्ड अ ट्रिप टू उत्तराखंड and I paid the fees, everything for the train and the guide and everything. And सब एंड मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ गया था because I realized कि अभी अगर मैं जाऊंगा एक हफ्ते का. ये कब का प्लान था? कब का था प्लान? दिसंबर सर, न्यू ईयर के टाइम पे था, 25 to 31 के दिसंबर के टाइम पे. ओके. तो मेरे को रियलाइज होगा अगर एक हफ्ते का वो गैप पड़ेगा CUT में तो फिर तो हो ही नहीं रहा, मैं छोड़ देता. एंड लाइक आई सेड, I had to be able to look myself in the mirror after CUT and realize कि मैंने मेरा बेस्ट किया.
अगर मैंने वो एक हफ्ते का गैप लिया होता तो फिर तो हो ही नहीं पाता मेरे से, तो फिर तो मैं अपने आप को बोल ही नहीं पाता मैंने बेस्ट दिया, क्योंकि मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैंने खुद ही गैप था। तो सारे कमिटमेंट सारे भूल गए सर, एंड सब कुछ भूल जाता तो है, बस स्टडी the best part, and I don't know, people will say कि sir it's very crypted, and you talk with any student, you say कि don't use Instagram, don't use social media. If I'm not sure, before that you might have watched 4-5 interviews of 25 batch we have done. Did you notice very common thing that social media was missing in everyone's life, and that Yes, yes. ensures good result. Even being an educator, even I see 5 hours 6 hours watch time on social media, Instagram, YouTube. So for me it's a part of my content and all, there I upload. But people who are in graduation, what you watch at social media, you have already subscribed a course for CUET, you have your own internals, exam, semester, and you have enough time for that. We are living in a world where cutthroat competition. You know very well social media is a money making platform from the supplier side, and we people are the consumer. Okay, it's fine, using is not bad, but at the cost of these things, what we dreamed of, what our parents aspired to become us. And that's a really very common point, guys. I would like to tell, either you take any class, you study or not, but if you are very much focused कि आपको next 5-6 months में exam करना है, social media को minimize करना, I will not say, because the kind of the virality they have, you cannot minimize कि चलो 20 minutes reel देखते हैं फिर 1 hour पढ़ेंगे. It's not like that. Once you start 20 minutes के बदले वो 2 घंटा 3 घंटा जाएगा. तो if possible minimize करें. As Pranav said कि WhatsApp is required, चलो friends and latest updates जो भी हैं, और टेलीग्राम पे भी लिमिटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां आप क्लासेस ज्वाइन किए हों, एनीवेयर, नवीनॉमिक्स और XYZ एनीवेयर, और कोशिश करें कि फ्रेंड सर्कल भी लिमिटेड रखें. व्हाट एंड एज ही सजेस्टेड कि बहुत सारे प्लान था, उत्तराखंड जाना था, आउटिंग इन्होंने बंद किया, सोशल गैदरिंग को अवॉइड किया. इट्स नॉट परमानेंट यार, 2-3-4 मंथ तो ऐसे ही निकल जाते हैं. And now everybody will be excited to meet you, hug you, treat you, yaar Pranav my boy and all. So hard work pays off. And I also found very interesting thing in our chat history. I remember when you joined in November, after that hardly 4-5 text, means the lectures you were watching, people what see, एक लेक्चर देखते हैं, सर ये नहीं मिल रहा है, सर वो नहीं मिल रहा है, सर ये कर्व कैसे होगा, वो शिफ्ट कैसे होगा, विदाउट गोइंग नेक्स्ट लेक्चर. द बेस्ट पार्ट इन यू आई फाउंड कि इन फरवरी यू अपडेटेड मी कि सर ये है, व्हेन यू हैड सम डाउट अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल. सो यू वर वेरी वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. यू वर जस्ट गेटिंग द लेक्चर्स. इट ऑल्सो सोच कि लेक्चर्स ठीक थे. इट वॉजंट लाइक समथिंग कि टफ था या डिस्टर्बिंग था. Sir, your lectures covered like 80% of the syllabus, 80 to 90% of the syllabus, and जो बाकी का 10 था, it has to be done from your side only. So since I couldn't do it from textbook, I just googled it. Whatever part I didn't understand from the lecture, I just googled it, and 10 times out of 10 Google answer दे ही देता है कि क्या doubt दे देता यार. So I didn't feel a need to text you regarding a particular doubt because मेरे solve हो ही जाते थे. Because I see, and unfortunately people who kept me texting, they are nowhere in the result. I don't know. Once I used to say कि people जो ये दिखावा जो आप करते हो कि मुझे ये आ रहा है वो आ रहा है, in Telegram people do ना, asking out of anything. कभी ISI की क्वेश्चन ला के दे रहे हैं, DSC के ला के दे रहे हैं. Now DSC has become irrelevant in text of CUET per se. Of course. So PYQ आपने क्या क्या किया था? Many people see suggest कि ये कर लो वो कर लो. What PYQs you have done, Pranav? So honestly speaking, the only PYQ I did is CUET, of course, the 2 years of PYQ, and HCU का PYQ. The big HCU का PYQ that you had of the past 10 years का PDF था वो. So it was fruitful, right? PYQ I did. The only thing I did, टाइम ही नहीं था मेरे पास कुछ और करने का. प्लान्स तो वो थे कि JNU का करूंगा एंड बाकी सबका करूंगा, टाइम नहीं था. So I decided कि अगर एक ही करना है, let's do HCU का, because sir is recommending that a lot, and it helped a lot because उसका जो level है, it's the correct level for correct level of CUET, exactly. It's not too mathematical like DSC कि तुम्हारा useless ही हो जाए, and it's not too easy also because it's requiring you to compute that in your brain and apply your knowledge what you have. So HCU is the perfect PYQ if you want to do for CUET. So it's not kind of any promotional things because you see the paper, and since beginning people will say कि sir you have tie up with the NTA and HCU. It's not like that. We have gone through the paper क्योंकि जब मैं HCU का PYQ किया था अपने टाइम पे 16-17 में, when I was preparing for the masters, I found it's very good, very balanced. बिल्कुल पूरा थियरी भी नहीं था, पूरा मैथ्स भी नहीं था. It was very balanced. तो जरूर से जरूर आप HCU का लगाएंगे, CUT का लगाएंगे. इफ पॉसिबल UGC नेट पेपर 2 भी थोड़ा कर लेंगे. दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिलीवेंट इफ यू आर फोकसिंग CUT. DSC सीम्स टू बी बिट रिलीवेंट हियर. आई एम नॉट सेइंग कि DSC का पेपर बेकार था, बट फ्रॉम CUT पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा आपको अवेयर होना होगा.
So मैंने एक पेपर देखा था डीएससी का सर, एंड इट वाज जस्ट सो मैथमेटिकल कि मैं खुद डिमोरलाइज हो गया था कि मैंने जो पढ़ा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो True, true, रहा। एंड true. देन आई वॉच्ड अ फ्यू लेक्चर्स ऑफ योर्स वेयर यू वर लाइक डीएससी का यूज ही नहीं है। सो आई रियलाइज कि डीएससी का भी नहीं करते। एक तो मैंने यूजीसी नेट के पेपर लिखे थे पर उतने अच्छे से नहीं गए थे मेरे एज कम्पेयर टू एचसीयू के। It's fine. आई जस्ट फोकस्ड ऑन एचसीयू का पेपर ओनली एज मच एज। वेरी गुड। तो प्रणव, आपका एक डे का क्या रूटीन होता था यूजुअली? ठीक है, आपके कॉलेजेस थे, 14 घंटे पढ़ने होते थे, क्या था एक नॉर्मल रूटीन आपका? सर मैं बताता हूँ कैसे था। बहुत ही हेक्टिक सा शेड्यूल था। सो आई वुड वेक अप एट 7 एंड माय लेक्चर्स वुड स्टार्ट एट 8:30 इन द मॉर्निंग। सो 8:30 टू 12:30 में लेक्चर्स होते थे। घर पे पढ़ते थे या लाइब्रेरी वगैरह पे? नहीं सर, कॉलेज के जो लेक्चर्स होते थे वहाँ पे मैं 8:30 12:30 जाता था। थैंकफुली मेरा सिलेबस इतना कॉलेज का कि वो सीयूटी ऑटोमेटिकली कवर कर ही लेता था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे हो जाते थे। एंड मोर और लेस आई वुड स्किप सम लेक्चर्स आल्सो जो उतने यूजफुल नहीं थे, एंड आई वुड स्टडी इन द लाइब्रेरी व्हेनेवर पॉसिबल। सो 12:30 से आई वुड कम बैक एट होम and I would eat lunch for till 1:30, and then 1:30 से I would sleep till 2:30, and then I would wake up at 2:30, and 3 बजे से लेकर 8-9 बजे तक जब तक डिनर नहीं हो जाता था मैं कंप्लीटली पढ़ते रहता था। लेक्चर्स देखता था, रिविजन करता था, पीवीक्यूज करता था, जो भी है। 9 to 9:30 फिर डिनर हो जाता था, एंड फिर 10 o'clock से लेकर 1 o'clock इन द मॉर्निंग तक वापस थोड़ा और पढ़ लेता जो भी लेक्चर्स बाकी है, एंड देन फिर 1 o'clock को थोड़ा ब्रेक ले लेता था, एंड 1:30 से लेकर अराउंड 4:30 कभी तक 5 भी खिंच जाता था वो, तब तक पढ़ते रहता था। एंड देन फिर 2 घंटे के स्लीप में उठ के फिर वापस कॉलेज जाता था। यार मतलब लाइफ बिल्कुल वही, लैपटॉप, लेक्चर, नोट्स। सर बहुत ही हेक्टिक सा था वो शेड्यूल। मेरे को इन हाइंडसाइट मेरे को भी नहीं पता मैंने कैसे तो किया था आपको वो। बोरिंग नहीं लगता था यार? मतलब वो कोई मूवी तो नहीं चल रहा है आमिर खान का और वो अमिताभ बच्चन का कोई मूवी तो नहीं चल रहा? यू आर वॉचिंग 8 hours 10 hours ऑफ वीडियोज, लेक्चर्स। इट्स नॉट लाइक आई हैड एन ऑप्शन इन माय माइंड कि एक ही था, जो भी करना था यही करना था, बोरिंग हो इंटरेस्टिंग हो जो भी है पर यही करना था। अगर ये नहीं किया तो क्या ही कर सकता था, कुछ कर ही नहीं सकता था। मूवी देख लिया तो 2 घंटा वेस्ट हो जाता था। सो और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा मेरे दिमाग में। आई वाज लाइक यही करना, बोरिंग हो इजी हो कैसे भी हो यही करना। सो कोई करना नहीं था यार। मतलब इट्स रियली रियली वेरी मोटिवेशनल, स्पेशली जो बोरिंग थिंग्स ऑब्वियसली यू नो पेज यू इन विथ लार्जर रिटर्न एज ही सजेस्टेड यू कि अवॉइड करें फोमो वगैरह। अच्छा प्रणव, एक चीज़ था ये फोमो वाला, बाय द वे यू हैड, अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई फाउंड कि जो सोशल मीडिया पे हैं उनको ज़्यादा फोमो आ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो अपने में मस्त हैं, मगन हैं, कॉन्फिडेंट हैं, क्लासेस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनको ये नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, यहाँ ये लेक्चर हो गया, ये क्वेश्चंस आ गया, क्वेश्चंस टफ आएंगे। यू नो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोग आपस में बात करते रहते हैं, कभी कभी टेलीग्राम में भी मैं देखता था। तो दैट फोमो वाज आई थिंक बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ दैट सोशल मीडिया थिंग्स, राइट? यू अवॉइडेड सोशल मीडिया। Actually, sir, I still had a FOMO because I was talking to my friends who were giving CUT, right? And they were preparing for much longer than I am, like I said. So what they were doing was that they were watching PYQs from YouTube and doing other channels से वो खुद से PYQ करते थे, section wise PYQ करते थे. And I just never found that you suggested that. You said to revise and to watch lectures and then to do PYQs on your own. On your and own. answers मत देखो. खुद देखो कि तुम खुद एनालाइज करो। सो आई नेवर डिड दैट, बट आई हैड दैट फोमो ऑफ लाइक व्हाट इफ दे आर डूइंग इट द राइट वे एंड आई एम डूइंग द रॉन्ग वे, व्हाट इफ उसके से मेरा मार्क्स कम हो जाए। पर इन द एंड आई ट्रस्टेड माय सेल्फ एंड आई ट्रस्टेड यू कि व्हाटएवर गाइडेंस यू आर गिविंग इट मस्ट बी राइट ओनली बिकॉज़ यू हैड एक्सपीरियंस, whereas they were just giving it for the first year. So I just did it my own way कि पढ़ा, रिवाइज किया 3-4 बार एंड फिर PYQs डाले, मॉक्स डाले, एंड देन आई होप कि होपफुली इट वुड हैव बीन इनफ फ्रॉम माय एंड। तो यार रियली प्रणव, थैंक यू सो मच। आई कैनॉट यू नो दैट सिंक्ड इन की मतलब यू जस्ट वॉच्ड एंड यू बिलीव्ड इन। थैंक यू फॉर बिलीविंग बिकॉज पीपल सी व्हाट ही कैन से, ओनली वॉचिंग लेक्चर इज नॉट एनफ, बट हियर आर द एग्जाम्पल यार प्रणव एंड लॉट्स ऑफ पीपल आई हैव डन द सेशन विद दैम. So you have to believe in your content. It's not about me. Wherever, anywhere you join, you have to believe. Belief is the first thing to success in your life. That any exam you are preparing, what Pranav has done, I'm really thankful for saying it really louder and honest way. And the best part, as I suggested, you know, are very much aware of the ChatGPT thing, AI and all. I remember what people used to do. If you upload any PYQ PDF, चाहे HCU के, CUET के, वो आपको डिटेल सॉल्यूशन दे देगा एंड यू विल बी हैप्पी कि सर के पास क्या पढ़ना, क्यों बनाना, वो तो आंसर आ गया. बट हाउ यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस एंड सॉल्व इन द रियल एग्जाम until unless your brain have that done GPT is like hours experience they are taking and all. तो that many people try, questions के screenshot लिए या PDF upload कर दिए, आंसर आ गया. Do you think कि these are gonna help them?
सर आई डोंट थिंक इट विल हेल्प देम, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें एक तो पहली बात है कि कोई कॉपी पेस्ट करके तुम्हें सेम क्वेश्चन देने नहीं होगा। एग्जैक्टली All एग्जैक्टली ऑल यू कैन डू फ्रॉम द पीवाईक्यू पार्ट इज कि क्या क्या कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस। एंड दूसरा कि जब वो क्वेश्चंस वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए तो व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन प्रोसेस डू यू हैव टू यूज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। चैट जीपीटी कांट हेल्प यू थिंक इन दैट वे, इट कैन जस्ट गिव यू एन आंसर एंड तुम रट्टा मार के जा सकते हो एग्जाम में, पर क्वेश्चन तो आने नहीं वाला, नहीं आने वाला बिकॉज सो तुम्हें खुद से ही सोचना पड़ेगा कि अगर ये आंसर है तो व्हाई इज इट दैट आंसर। स्पेंड 10-15 हाफ एन आवर व्हाटएवर टाइम इट टेक्स, बट एनालाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग एंटायर पीवाईक्यू, बिकॉज एनालाइजिंग के बिना पीवाईक्यू इज अटरली यूजलेस। अगर तुम्हें 30 मार्क्स भी आ गए 100 में से, एनालाइज की वो 70 मार्क कहाँ पे गए, एंड तुम्हें 90 मार्क भी आ गए तो भी एनालाइज करके 10 मार्क कहाँ पे गए, उसी से दोबारा लिखिएगा। अच्छा, आपने मॉक वगैरह भी ट्रैक किया था या मेनली पीवाईक्यू पे रिलाई किए थे? सर मैंने एक्चुअली आपके मॉक ट्राई किए थे। I planned on buying mocks from other courses also, but again it was literally as expensive as your entire crash course was. It made no sense for me कि मैं 10 मॉक के लिए इतना पैसा क्यों जितना मैंने 180 लेक्चर्स के लिए दिया, तो सेंस ही नहीं बना मैंने। तो आपके जो 4 मॉक्स थे वही मैंने लिखे, एंड थैंकफुली मॉक्स में इतने अच्छे क्वेश्चंस, इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस था। Yeah, I saw your score, like you were doing really great. And जो मॉक्स को सीरियसली नहीं भी लिए थे, एटलीस्ट आई सी माई सीक्वेंस इज दैट कि पहले लेक्चर्स देखो, वंस यू आर डन विद द लेक्चर्स यू हैव दैट कैपेबिलिटी, नाउ यू जंप टू द पीवाईक्यू। वंस अगेन पीवाईक्यू इज डन, स्टिल इफ यू थिंक आई वांट टू एक्सप्लोर मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एंड ऑल, बिकॉज वो एक सेल्फ बूस्टर का काम होता है, देन यू गो टू द मॉक्स एंड द सेक्शनल टेस्ट, वी हैव नियरली 100 टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट देयर, देन यू डू, बिकॉज मॉक्स आर रियली मॉक्स, इट नेवर इंश्योर इवन फ्रॉम माई एंड आई विल से कि मॉक को आप रेप्लीकेशन ऑफ मेन पीवाईक्यू मेन क्वेश्चन मत समझो। मॉक इज जस्ट टू यू नो काइंड ऑफ रिविजन, काइंड ऑफ प्रैक्टिस। जैसे एक साथ आप बहुत सी चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट के थियरियाज हैं, कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हैं जो कि काफ़ी यू नो ग्रे एरिया टाइप से है, वो सब मॉक्स में कवर हो जाते हैं। तो मॉक इज ए वे ऑफ रिविजन, इट हैज़ नेवर बीन कि वही क्वेश्चन आने वाले हैं या सर आपके मॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आएंगे, बट हाँ लेक्चर से आएंगे, कंटेंट से आएंगे, जो आपने किया है टॉपिक वाइज जो सारे वीडियोस देखें उससे आने ही आने हैं। एंड द एग्जांपल इज हियर द प्रणब एंड हाँ, what I would say about mocks is कि sir CBT के जो mocks रहते हैं, it's not like JEE का mocks which has like hundreds 50-20 years of precedence कि जो mocks आएंगे it's very based on the reality। CET का हमने ये देखा है कि कभी 23 वाला पेपर आएगा, कभी 24 वाला पेपर आएगा, कभी 25 वाला पेपर आ जाएगा। So mocks is never the basis of what will come in the coming year. Yes, it's just a kind of revision and it helps with timing. Timing is the most important thing with mocks, because what I did with PYQs is I took my own time and I कितना भी टाइम लगे सोचने में, टाइम लगा मैं दे दूंगा, but mocks में टाइम नहीं मिलता सोचने का, you have to answer फट। So that's what mocks is helpful in, कि it helps in timing and helps in कहाँ से question आएगा section। So it was like I had admin access, I could not see the student point of view, it was exactly like CBT at CUET does, right? हाँ जी sir, exactly like review question, timing, everything, 90 minutes। So what helped for me in the mocks is that मैंने क्या किया था कि 75 questions थे, so first I just used to spend like 15 to 20 seconds in every question। जिस question पता था फटफट की आंसर आ सकता नहीं आ सकता तो मैं लिख देता, वरना मार्क फॉर एरर छोड़ देता। तो ऐसे कर करके I had finished the entire paper in 60 minutes and then फिर जो बाकी का टाइम बच गया था हाफ एन आवर, उसमें जो मार्क फॉर एरर था उसके सोच के exactly। So that's what mocks are helpful। तो अब हम चलेंगे थोड़ा एग्जाम हॉल में, बिकॉज दिस इज वेरी माई फेवरेट टॉपिक विच आई टॉक एंड आई कैन फील आई फेल्ड इन प्रीलिम्स। द बेस्ट और वर्स्ट पार्ट यू कैन सी आफ्टर राइटिंग मेंस एग्जाम आई फेल्ड प्रीलिम्स ट्वाइस। तो वो जो प्रीलिम्स MCQ क्वेश्चन होता है, दैट फियर स्टिल यू नो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो जब आप एग्जाम हॉल में थे एंड यू सॉ भाई ये क्या बाउंसर आ रहा है, दैट टाइम जब सचिन खेला करता था एंड प्रणब वो सचिन और शोएब अख्तर का बाउंसर आता था, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट वार कि यार अब तो मैं गया, मेरा इतना पढ़ा हुआ 14 आवर्स 16 आवर्स, सर के इतने लेक्चर्स देखे, अब मैं क्या करूं भगवान, अब मतलब सेव मी, क्या था वो सिचुएशन एग्जाम हॉल में? सर मैं मेरा मार्च बताता हूँ पूरा कैसे गया था। हाँ प्लीज। मेरा मार्च हुआ ऐसा था कि जब मैंने वो छोटा सा 50 पेज का बना दिया था, आई हैड रेड इट 2 or 3 times, ठीक है, एंड माय सेमेस्टर एंड एग्जाम वाज स्टार्टिंग ऑन 24th of March एंड 26th of March को मेरा पेपर था इकोनॉमेट्रिक्स का, एंड 28th of March को मेरा पेपर था इकोनॉमेट्रिक्स एंड 28th को CET का भी पेपर था। So ऐसे हो गया था कि I studied from 1st March to 22nd March for just CVT, the छोटा वाला बुक,
एंड 24th और 25th ऑफ मार्च को मैंने एक दिन पढ़ा था मेरे एंड टर्म के पेपर के लिए, एंड जो 26 एंड 27 था वो 2 दिन वापस मैंने रिवाइज किया था। तो हुआ ये था कि आई अल्टीमेटली हैड जस्ट 2 days ऑफ रिवीजन फॉर द सीयूईटी का, बट बाय दैट टाइम मेरा वो छोटा बुक इतना रट्टा हो गया था कि जब मैं बुक खोलता था, एक डायग्राम देखता था, मेरे को उसके सारे सब पॉइंट्स याद आते थे। कितने पेजेस के वो थे? 40-50 पेजेस के सर। Like I would like just add here, I can correlate it. Hope in future we'll meet. If I visit Mumbai, I will definitely come you. So मैं कोई भी एग्जाम दिया, I have cleared 2 times JRF and all, जितने भी एग्जाम दिया, even for the IES 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया। तो ये जो ब्यूटी थिंग यू टोल्ड 40-50 पेजेस की, उसमें मैंने सारे एंटायर थिंग्स को करता था। मेरे पास भी नोट्स हुआ करते थे 5-7 डिफरेंट, बट जब रिवीजन होता था मैं एक वीक में नोट्स बनाता था और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ता था। एंड दिस वाज आल्सो, दिस इज सजेस्टेड व्हाई, बिकॉज इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ एक मेंटल फ्रीडम कि यार मुझे तो 50 पेज ही पढ़ने हैं, वो 500 पेज में नहीं पढ़ सकता। एंड वो 50 टाइम्स यू कैन रिवाइज डेली, इनफैक्ट इफ यू सिट 5-6 आवर्स, बिकॉज यू हैव मेड द नोट्स। और वो कॉन्फिडेंस बड़ा अजीब आता है, अरे आई कैन डू, आई कैन विन द वर्ल्ड। हाँ प्लीज। तो 2 दिन बचे थे, हाँ एग्जाम, फिर आपने हाँ तो जो मेरा 26 को एग्जाम खत्म हुआ था, मैंने 26 पूरा वो 50 पेज को पढ़ लिया, 27 को पूरा 50 पेज पढ़ लिया। तो पूरा मैं काम से बैठा था कि अभी तो मेरे को सब कुछ आने लग गया कि ये पूरा पढ़ लिया अच्छे से, तो आएगा तो इसी से आने वाला है। एंड वो जो कमिटीज एंड बुक्स की भी जो अपने अलग से हैंड आउट दिए थे वो पढ़ लेते अच्छे से। तो वो था। एंड जब मैं जा रहा था तो एक और बार मैंने रिविजन कर लिया कैब में। तो जब मैं बैठा एग्जाम के लिए, 1 घंटा वो वेटिंग का टाइम था, वो बहुत ही अजीब सा वेटिंग का टाइम वो एनोइंग होता है थोड़ा। 8 बजे तो पहुंच जाते, 9 बजे तुम्हारा एग्जाम खत्म होता है, 1 घंटा तुम बस रिवाइज करते रहते दिमाग में, ये आएगा ये आएगा ये आएगा। एंड देन अल्टीमेटली 9 बजे वो चालू हो गया। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आई स्टिल रिमेंबर, द फर्स्ट क्वेश्चन was from वो dependency ratio वाला question। अरे यार, dependency ratio क्या वो मेरे को पता, पर stats and figures आप कैसे पूछ सकते हैं मेरे को। so वो मैंने छोड़ दिया। I was like ठीक है कोई नहीं, first question हाँ, 1-2 चलेगा। फिर सेकंड थर्ड मेरे को आ गए थे, पर थोड़ा सोचना विचारना पड़ा था। पर फिर फोर्थ वाला फिर अजीब से वापस आ गया था, वो 2021 वाले बजट का कुछ आ गया था उसमें। एंड वो नहीं सॉरी क्रॉप प्रोडक्शन वाला आ गया, क्रॉप प्रोडक्शन, वी हैव डन दैट। और वो भी इसमें इतना प्रॉब्लम था कि मेरे को याद था कि वो 300 में कुछ था, बट काफी क्लोज था, वो क्लोज दे दिया था, काफी क्लोज वाले दे दिया। आई वाज लाइक ह्यूमनली वो पॉसिबल ही नहीं कि मैंने पढ़ा होगा, तो आई वाज होपिंग कि किसी और ने भी नहीं पढ़ा था। सो आई स्किप्ड। एंड ऐसे ऐसे कर करके बाय द एंड ऑफ इट, लाइक आई सेड, इन 70-80 मिनट्स मेरा ऐसा था कि मैंने 35 to 40 क्वेश्चंस फॉर श्योर करेक्ट कर लिए थे। एंड 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे को आने नहीं वाले थे। पर बाकी के जो 25 to 30 क्वेश्चंस थे वो मेरे मेबीज थे कि हो सकता है सही भी जाए, हो सकता है गलत भी जाए। 50-50 वाले क्वेश्चन थे कि शायद सही भी जा सकता है, शायद गलत भी जा सकता है। सो इन द स्पैन ऑफ 10-15 मिनट्स आई वेंट थ्रू द एंटायर थिंग। वो 30 जो भी मेबीज थे उसको मैंने सोचा विचारा, एंड हाफ अ मिनट में मैंने सब कुछ आंसर दिया, नहीं आंसर दिया, छोड़ा वगैरह वगैरह किया। तो आई डिडंट पैनिक इन द एग्जाम। आई हैड दैट इन माय माइंड कि अब देखो, अब जो भी मेरे साथ हुआ वही बाकी सबके साथ भी हुआ होगा। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम इज आई नो दैट माय प्रिपरेशन वाज रियली रियली गुड। आई नो दैट व्हाट आई स्टडी फ्रॉम द लिटिल टेक्स्ट बुक, उससे ही 40 to 50 क्वेश्चन उससे ही आए, एंड बाकियों का आए ना आए, पर मेरे को तो वो सही आने ही वाले। तो आई वाज वेरी काम। बट वो जो लास्ट के 2-3 मिनट थे सर, बहुत ही पैनिक हुआ था क्योंकि आई सॉ कि 10 क्वेश्चन थे जो अनआंसर्ड थे। एंड आई थॉट कि एटलीस्ट 200 के ऊपर तो जाने ही वाला कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर 240 जितना ना भी जाए, पर 200 के ऊपर तो जाने। वो माइंडसेट था ना। हाँ सर। सो आई हैड टू एटलीस्ट राइट फॉर 220-240। सो अगर कम भी है तो 200 के ऊपर आ जाएगा। तो बहुत पैनिक सा था, एंड लिख दिया मैंने जैसे तैसे। एंड एग्जाम खत्म होने के बाद 10 मिनट मैंने सर डाल के सो गया था मैं बस, क्योंकि बहुत ही वो दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मेरे को लगा कि अब तो नहीं हो रहा, अब तो हैदराबाद एक गोखले होने वाला। ये तो IGD और DSE के कॉल छोड़ ही देते करके। बट देन आई टॉक टू अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन ऑन डिफरेंट हु आर डूइंग डिफरेंट कोर्सेज, एंड आई रियलाइज दैट इन जनरल उनका सबका ये ऐसे पेपर गया था कि उनका भी बहुत सारे मेबीज थे, एंड अल्टीमेटली डिपेंडेड ऑन किसके ज्यादा रीजनिंग बेटर थे, एंड थैंकफुली मेरे बेटर थे। No, it's very obvious. I can understand because once you talk ना, you feel कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवनीत सर ने कुछ और पढ़ा दिया, वहाँ पूछा कुछ और आया। इट्स वेरी जेन्यून थिंग। देन वी क्रॉस चेक कि अच्छा कहाँ से। इवन आई ट्राइड बिकॉज इवन इन आवर कोर्स आई वुड लाइक टू ऐड, दे वर इनरोल्ड इन डिफरेंट कोर्सेज, एंड दे वर दैट मॉनिटरिंग बोथ द थिंग्स, मेरे भी लेक्चर्स और वहाँ के भी लेक्चर्स, बिकॉज दे हैड बोथ कनेक्शंस। अगर 500 बच्चे वहाँ हैं, 500 बच्चे यहाँ हैं, तो आपके पास 1000 का ग्रुप है। तो वो बोला कि नहीं सर, पेपर वॉज रियली टफ, एंड आई सॉ योर मैसेज ऑन 28th 12:36,
जब बच्चों में वो आ गया था, सर ये क्या हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, 150 भी नहीं आएंगे, एंड वी फॉलो द एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, वो जो सॉरी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की जो मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था कि लास्ट ईयर ये इन्फ्लेशन था तो अभी यही रहेगा, तो लास्ट ईयर आपने देखा कट ऑफ 230 के आसपास जा रहा है, तो इस बार भी नियरली तो 200 जाएगा, तो वो दिमाग में चल रहा था। एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लॉन्ग मैसेज यू डिड, देन आई थॉट कि चलो यार, मतलब ठीक है, इफ ही हैज डन दिस मच हार्ड वर्क। हाँ प्लीज सर, what I saw in the group is that people were just piling on you कि like आपसे गलती हो गई kind of thing, but ऐसे नहीं था आपसे गलती हो गई, क्योंकि इतना ही unexpected सा पेपर था कि आप प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। मेरे दिमाग में क्या था before preparing was that आपने एक तो टाइम कम कर लिया from 105 to 90 minutes, and ऊपर से you're keeping the same amount of questions. Exactly. So I human brain you will think that paper will come on the easier side only, क्योंकि आप हार्डर साइड पे रखोगे तो कोई आंसर कर ही नहीं पाएगा, और एनटीए बीइंग एनटीए उन्होंने हार्डर साइड पे रख दिया, तो ना आप ना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट इट वाज वेरी अनफेयर ऑफ पीपल टू जस्ट पाइल ऑन यू कि लाइक आपसे गलती होगी, आपसे गलती होगी, गलती किसी से नहीं हुई थी, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था। तो आई थॉट आई शुड लेट यू नो कि क्या मैं क्या सोच रहा हूं, ताकि इफ इट हेल्प्स इट शुड वो मेंटल स्टेटस यू कैन कोरिलेट द काइंड ऑफ एफर्ट यू पुट that you receive. So before that, preparing the lecture, teaching, maintaining, it takes immense time and effort, and in return I saw the paper and the crowd was saying something just like, so sir, if after 3 months of hard work it was hard for me, I can't even imagine after 1 year of hard work and countless amount of content that you have put in on YouTube, on Instagram and whatever, how much hard it would have been for you, for being responsible for thousands of kids, and then for them to say that. But I just thought that even if वो 1000 में से मैं अकेला बच्चा हूँ जिसने आपको हेल्प किया होगा, I should let you know कि आपने मेरे को बहुत हेल्प किया, and मार्क्स कैसे भी जाए I should let you know कि आपकी वजह से जो भी आएंगे मेरे को उतने ही आने होंगे। तो yes, I understand यार, thank you यार, because if you see it's people see ki only affordability, and yeah, affordability was there, but also you see the content was not that less expensive. Course was expensive, but content wasn't. I have no idea what the other courses teach upon, but what I can say is I paid 4,000 rupees for the course, and 4,000 mein you have completed every single thing that came under CUT. And if I had referred to reference books, I would have definitely got a lot of more marks. It was not because of what you did I got 180. I would have gotten even more if I had more time for it. True. So the value for money that we get in your course is unmatched according to my opinion. Not only because of the lectures and the material and the notes you provide, it's also because of the one-to-one guidance. I obviously didn't ask you a lot of questions before the exam, but after the exam you have been so helpful for me in choosing the colleges and helping me throughout the other preparation and other entrances. I don't think I would have gotten any other course. It is. Thank you so much yaar, I'm very much grateful to have you, like Pranav, and many people came. What happens, there is a domino, so once you start speaking, these days there is a trend, people don't speak up, people are not able to show their that show of gratitude. I also feel good कि my work, my effort is appreciated, and किसी के काम में आ रहा है, किसी के हेल्पफुल आ रहा है, so it motivates me ultimately कि अगर मैं एक प्रणव आज मैं यहाँ पे अपने नवीनोमिक्स से दिया तो कल होके 100 प्रणव आएंगे, so that motivates me. I will try my best to streamline the things, content पे और काम करना, and no wonder if you see even the question part, somewhere I remember Indian economy के बहुत सारे facts थे, but almost that pattern we have decoded somehow. क्वेश्चंस आए थे। एक था कि फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट वाला था, वो ऑब्वियसली मेरे को स्टार्स याद नहीं थे, बट मेरे को इतना अच्छा याद था कि प्राइमरी डेफिसिट इतना हाई हो ही नहीं सकता, फिस्कल डेफिसिट ही हाई होना पड़ेगा, तो वो पैटर्न देखे तुम्हें समझ आ ही जाएगा। इफ यू पैनिक एट दैट मोमेंट कि अरे नवी सर ने तो मेरे को तभी सिखाया नहीं था, तो उनकी गलती है करके अगर उन्हें बता रहा था कि 3 साल पहले क्या हुआ था तो मैं लिख देता, दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। यू हैव टू हैव दैट एनालाइजिंग इन योर माइंड कि अगर ये ट्रेंड रहा है पिछले 2 साल का, तो 3 साल पहले भी कोरोना के टाइम पे वही ट्रेंड हुआ होगा। तो लाइक एनटीए बीइंग एनटीए एज ही टोल्ड, तो 26 27 में एवरी टाइम यू विल गेट न्यू, सो दैट्स द एक एडवेंचर, ए काइंड ऑफ इंटरेस्ट, वो अजब ही रोमांच होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी न्यू मैच, हर मैच में, अब आप आईपीएल ही देखते हो, हर मैच का एक अपना रोमांच होता है। इफ यू सी अरे ये तो आईपीएल था, ये टीम खेल रही है, यही जीतेगी, नो, एवरी मैच इट्स अपना रोमांच है। तो आई होप कि सीयूटी एनटीए थोड़ा बहुत तो सिलेबस से थी, अदरवाइज 180 कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आउट ऑफ बिल्कुल सिलेबस रहती तो 100 कट ऑफ जाती। सो पेपर आ रहे हैं बुक से, कंटेंट से, लेक्चर से, आपको बिलीव करना होगा। एज प्रणव सेड
three important point I noted in the 50 minutes of the session. The best part, he avoided this social media वाला things, because to energy आप एक जगह लगाओ. एनर्जी एक जगह कैसे लगेगा? 5 आवर्स सोशल मीडिया कर रहे हो, 7 आवर्स स्लीप कर रहे हो, 5 घंटे बचेंगे फिर पढ़ने के लिए. तो सोशल मीडिया का टाइम कट करके आप पढ़ाई पे कर लो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग कि आप कहीं भी क्लास ज्वाइन किए हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको अपने कंटेंट पे फेथ रखना होगा, बिलीफ रखना होगा. अदरवाइज बुक्स, अब माइक्रो के ही बुक्स देखो 8-10 बुक्स हैं, पढ़ते रह जाओगे. आपने कर लिया है एनफ पढ़ाई, वेल एंड गुड, बट लास्ट के 5-6 मंथ बचे हैं तो आपको बिलीव करना होगा आपके कंटेंट पे. सेकेंड थिंग. एंड थर्ड थिंग, द बेस्ट पार्ट ही डिड दैट 50 पेज वाला. मैं तो उसका सोच रहा हूँ ऑक्शन करवाऊँ और वो उसकी ऑक्शनिंग होगी. सर मैं दे दूंगा आपको, मतलब प्रॉब्लम है कि इतना स्क्रिबल्ड सा है ना, वो पहले मैंने ब्लैक से लिखा था, फिर मैंने रेड से लिखा था, फिर ग्रीन से लिखा था, फिर गोल्डन हो गया. No, like see, that's your hard earned things that cannot somebody get by just buying Navinomics course. Everybody won't have. I guarantee you, everybody won't have. So that shows your effort, yaar. So you will cherish it. I am sure you will keep it for so long. Like जब तक आप उसको कोशिश करोगे, you will definitely cherish it कि यही 50 पेजेस ने मेरे को IGDR दिया. और आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आप 200-180 लेक्चर्स को 50 पेजेस में किए, एंड यू सेड कि सर आई हैव मेंशन्ड देयर एवरीथिंग. सर वो 50 पेजेस सिर्फ IGIDR में दिया, वो 50 पेजेस से फिर मेरे को अशोका पे दिया, एंड फिर मेरे को MSc भी दिया था. ओह दैट आई सॉरी यार, आई जस्ट फॉरगॉट. MSc ऑल इंडिया रैंक 3 आई एम टॉकिंग टू. यस. तो वो 50 पेजेस के बलबूते पे ही ये जो 3 मंथ के स्पैन में जो भी एग्जाम दिए, जो भी कॉलेज क्रैक हुए, ये 50 पेजेस के ऊपर ही हुए. एंड ये 50 पेजेस वर मेड अपॉन योर 180 लेक्चर्स. यार मतलब ये तो फ्रेम करके रख रखा है. जस्ट लाइक आई एम गेटिंग गूज़बम्प कि 50 पेजेस, एंड इट्स जस्ट I cannot speak, Pranav. Sometimes I become so emotional. Once you work very hard, once you have honesty, once you don't have like the many people do the business and all. I believe in that's the different part. But how human good you are, human being you should be. You should put all your effort. ठीक है, every people have their different capability. But what I have learned, the best part I can tell you, I deliver my all experiences. I may not be the best faculty, I admit, but experience what I have of different exams and different meeting the people, that I share in class as well. Even if you watches the lecture, I don't compromise कि अच्छा यहाँ CUET है तो सिर्फ मैं CUET का पढ़ाऊंगा. If there is a question from IES PYQ, IAS PYQ, UGC NET, मैं उसको क्यों छुपाऊं? I deliver there. हाँ जी तो वो एक्चुअली जब आप PYQs लिखते थे, I have written down in my notes also. So when I'm revising it, it will be like a standard of कि मैंने जो पढ़ा मेरे को याद है कि नहीं है. So when you wrote that in your lectures, that was really helpful for me also, because वो एक स्टैंडर्ड आ जाता है ना कि अगर मैं IES का कर सकता हूँ, मैं UGC NET का कर सकता हूँ, CUET तो फिर में से हो ही जाएगा. Exactly. People see कि CUET का पेपर टफ है, बट एक काइंड ऑफ माइंडसेट डेवलप करना होता है. अरे मैं तो IES का पेपर कर रहा हूँ, मैं तो IAS का कर रहा हूँ, ये CUET तो क्या है, ये तो बच्चा है, ये तो तुच्चा पेपर है, छोटा है ये. If I go to PYQ of IES, nothing there. क्योंकि in future many of people like go for IES exam, IAS, तो वहाँ भी उनको फैसिलिटेट करे ये. तो इट वॉज देयर. प्रणव, अब हम थोड़ा सा चीज़ों को स्पेसिफिक देखेंगे. दैट कमिंग टू द यूनिवर्सिटी थिंग्स, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द अशोका इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इट इज़ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट, एंड यू हैव क्रैक्ड दैट अशोका. सो प्लीज़ थोड़ा सा 2 मिनट्स में एक ब्रीफ बता दें अपार्ट फ्रॉम द CUET में. प्रणव टोल्ड आई कैनॉट से कि यू रीड बुक्स एंड ऑल. Definitely you should, but you have lack of time. You should. He did just lack. I didn't, but that was my mistake. You definitely have to read books. कितना भी time हो तुम्हारे पास, unless तुम मेरे जैसे 3 महीने में दे रहे हो. If you're starting now, August, September, read books without fail. Yes, because everybody cannot do. I'm telling you, even in our that 3-4 months wala course, nearly 200 people were there. So there also people have if background well and good, and everybody cannot put 14 hours, and I don't think everybody should, until unless it is needed. You have the life, balance it, do and all. So Pranav, how did you manage MSc All India rank 3, then you cracked Ashoka, and जब आप ये top 3-4 institutes आप पाए हो, MSc is still one of the best in that थोड़ा expensive है but still best. Ashoka is also top notch, and IGDR definitely. I am biased for the IGDR. I prefer DSC after IGDR. Yeah, so how you did all this? हाँ जी sir. So I'll start with Ashoka. So I'll start with MSc because मेरा NSEM हुए थे April 7th, April 8th को, ठीक है. तो उसके बाद I took 1.5 week का break because वो बहुत hectic सा हो गया था पिछले 3-4 महीने पढ़ो करके. So I took 1.5 weeks का break. I went out with my friends, enjoyed a bit, and after that around April 20th
I started studying for MSc. So I contacted a few people from MSc on LinkedIn कि आपने जब क्रैक किया था तो आपने कैसे क्रैक किया था, and what they said is the economics part of MSc तुमसे हो जाएगा, तुमसे CVT हुआ, पर जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो कैट वाला पार्ट है उनका, उस पे फोकस करो, बिकॉज उस पे कोई फोकस ही नहीं करता है, वही एंड में तुम्हारा कट ऑफ डिसाइड, दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, 60% 60 मार्क्स, मेजॉरिटी पार्ट उसी से आता है. सो 2-3 दिन मैंने बात किया लोगों से, and around April 24th I started with making a YouTube playlist of what MSc के syllabus को कौन सा पार्ट कवर करता है, and I made around 30-40 videos per playlist of the aptitude part of MSc, and वो मेरे पास अभी भी है. तो from April 25th or something I started doing the aptitude part of it, and वो 1-2 हफ्ता उसमें खींचा था, and वो कर लिया था मैंने. फिर उसके बाद अशोका का I studied for 3-4 days and I gave it on May 18th. तो वो relatively easy था, and I didn't think I wanted to go to Ashoka, but वो एक as a backup चाहिए था, क्योंकि at that point मेरे को पता नहीं था कि क्या ऑल इंडिया रैंक कितना मेरा. 180 for all I knew, बहुत लोगों के 200 के ऊपर भी आ सकते हैं. People make ना कि 200 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, but किसके आ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है. Nobody was there even in the Telegram. So जब आप पोल रखते थे तो मेजॉरिटी ऑफ लाइक 10-15% ऑफ पीपल यूज्ड टू गेट अबव मी. सो लाइक अगर मैं 85th परसेंटाइल में हूं तो मेरे को तो DSC IIT अटेंड भी नहीं सकता. तो आई जस्ट केप्ट द ऑप्शन ऑफ Ashoka open, so I gave the Ashoka exam and I got a good mark in it and I got admitted into it. And after Ashoka was done, the 18 को खत्म हुआ था, so 19 से लेकर 30th तक I just studied and revised for MSc. I just revised the जो aptitude part है उसका मैंने रिवीजन किया, जो मैंने नोट्स लिखे थे, and फिर इकोनॉमिक्स का तो 1-2 दिन ही रिवीजन किया था मैंने MSc के लिए, because I was like हो जाएगा यार. 180 प्लस वाले क्या ही रिवाइज करेंगे इकोनॉमिक्स या. हाँ जी सर. सो जब MSc का मैं एग्जाम लिखने गया था, इट वाज वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो गया था वो, पर फिर मेरा इतना रिवीजन सा हो गया था ना कि मेरे को पहले से पता था कि इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी जाएगा. तो आई थिंक कि वो 40 में से अराउंड 35 तो मेरे को मिल गए उसमें. एंड एप्टीट्यूड भी मैंने इतना रिवाइज कर लिया था कि उसमें ही कटा होगा 10 मार्क, पर फिर वो बाकी लोगों से ज्यादा आ गए उसमें. तो you had 86 marks out of 100. Yes. If you're writing MSc, focus on the aptitude part of it, the CAT part of it, because that will be the decider for you. And if you need the YouTube playlist, you can always contact me. Yeah. Okay, Pranav, you just shared me, because I will be sharing with the students. Nothing wrong in that. जहाँ से आपको knowledge मिले, you please gain it. And see Pranav, the sequence. Just I would like to summarize in 30 seconds. So focused was CUT. Once your economics part is done, you are almost mentally free कि अब मुझे economics में टेंशन नहीं है. 40 में मैं 30 प्लस लेके आ गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 30 आपके वहाँ बन गए. अब आपको खुल के एप्टीट्यूड टेस्ट पे ध्यान देना है. एप्टीट्यूड वाला पोर्शन वो 1 मंथ 15 दिन अच्छे से करोगे, हो जाएगा. तो इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ एप्टीट्यूड से आपका हो जाएगा. अगर आपके वो 35 में अगर 20 सही होता इकोनॉमिक्स में, तो फिर तो मामला कुछ और होता. Of course. The only reason कि मैंने इकोनॉमिक्स फोकस उतना नहीं किया was because 4 महीने के लिए मैं 14-16 घंटा पढ़ के इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहा था. अब ऑब्वियसली अगर आप 1 साल से पढ़ रहे हो पर 1-2 घंटे देके पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक्स. तो प्रणव, अभी यहाँ तक के बाद अब आगे का क्या प्लान है? लाइक आगे तो अभी बस IGIDR है सर. IGIDR starts from 4th August. So I'm planning to go to IGIDR on 2nd or 3rd, and then IGIDR continue करूँगा मैं. And उसके बाद the plan is कि I'll do 2 years of IGIDR, and then I'll see if placement opportunities are available for me. I'll sit for placements. If they are not as good as I think they are, then I'll directly go for UPSC after a year. Okay. So that clarity you have very good. तो प्रणव, यू माइट हैव डन बेसिक होमवर्क बिफोर ज्वाइनिंग द IGIDR, राइट? क्या उसके स्टेट्स रहे हैं, कैसे पढ़ाई करिकुलम है? सो या प्लीज शेयर इफ यू हैव एनी आइडिया. सर, सो IGIDR का इज वेरी वेरी सॉर्टेड, बिकॉज उनके लिंक्डइन पेज ही है प्लेसमेंट सेल का, जहाँ पे सारे स्टार्ट्स को निकालते रहते हैं. So if I'm not wrong, for the past couple of years, their median salary was around 20-21 lakhs, and the highest went to around 25-26 lakhs, and lowest भी बहुत ही close ही था उसके, 13 या 14 ही था. So what I saw, the trend in IGIDR is that जो भी market down चल रहा है, IGIDR is not that उसके फर्क नहीं पड़ा उसका मार्केट डाउन की वजह से. So I decided that if I want to keep both of my options open, UPSC and placements, IGIDR is the better place to go. So that's why IGIDR. Okay, so their course curriculum is also very balanced, because DSC तो काफ़ी hectic और काफ़ी ज़्यादा क्वांट है, and IGIDR provide you ample amount of courses. वहाँ पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी हैं, इकोनोमेट्रिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, वो तो क्वांट रहेगा. देन दे प्रोवाइड रेमेडियल क्लासेज एज वेल फॉर स्टार्टिंग 10-15 days. मैनी पीपल हैव डिफरेंट बैकग्राउंड बिकॉज आई एंड अच्छा, वहाँ का कैंपस लाइफ, हॉस्टल एक्सपेंडिचर वगैरह, प्रणव एनी आइडिया?
Sir, so I paid the fees for IGA right now, and the fees was 63,000 for including the hostel, the electricity bill, the tuition fees, and So total मैं उसमें 36,000. included 63,000 63,000 for first semester, yeah. पर उसमें ट्यूशन फीस ऑफ अराउंड 20,000 था, Okay. जो कि सिर्फ सेमेस्टर 1 का था, सो आई हैव टू पे दैट फॉर सेमेस्टर 2, सो अराउंड 1 लाख पर ईयर में हो जाएगा उसमें, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस, Including hostel 1 lakh. हाँ जी, इंक्लूडिंग हॉस्टल 1 लाख, बट इसमें मेस का इंक्लूडेड नहीं है। मेस व्हाट आई हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स इज दैट इट्स वेरी क्या बोलते हैं, सब्सिडाइज्ड मेस है, तो अराउंड 20 रुपीज फॉर ब्रेकफास्ट एंड अराउंड 50 रुपीज फॉर लंच एंड डिनर, तो उतना ज्यादा है नहीं उसका, तो मेस भी थोड़े बहुत पैसे में हो ही जाएगा उसमें। अच्छा, I heard of scholarship something. Do you know anything about scholarship? I did, but the problem is the scholarship is for income, the people having income below 2 lakhs. So I don't qualify under it. Okay. So I won't be applying for it. But those who have under 2 lakhs, they can definitely. क्या है scholarship? Who are eligible? How much? The people who having income under 2 lakhs, they can get a scholarship from IGA. Okay. I don't have the exact amount they'll get, but Yeah, because I also heard there was 5,000 during our time, then they revised to 8,000. So it's that keep changing. So Pranav, like very beautifully you have explained IGDR, very sorted. उनके LinkedIn pages हैं, वहाँ जाके पता करो, बच्चों से बात करो. The transparency, yeah, really I am the fan of that. Transparency is much needed. That's the one thing about DSE that I didn't like, sir, is कि उनका कहीं पे लिखा ही नहीं था, कहीं कुछ like we had to rely on like second person, third person knowledge कि वो जो बोल रहे हैं वही सही होगा, so वो मेरे को थोड़ा सा opaque सा लगा। I hope they will come here because competition is going on, और कहीं ना कहीं अब IGDR के भी सीटें बढ़ गई हैं, अभी 75 हैं, तो in coming days it could be 100 also. दे आर प्लानिंग, तो कंपटीशन बढ़ेगा, बच्चों के लिए अच्छा है। 300 सीट्स वहाँ हैं, 75 सीट्स यहाँ हैं, एंड द बेस्ट पार्ट यू मेंशनड अबाउट द लिविंग कॉस्ट, यू गेट द हॉस्टल। मुंबई जहाँ पर कि आई लिटरली एम टेलिंग यू 50,000 1 BHK है वहाँ, पीजी आपको 20 के बिलो नहीं मिलेगा इफ़ यू स्टे इन मुंबई। दिल्ली में भी नॉर्मल पीजी के नियरली 10,000 हैं, सो इन 2 years 2.5 लाख सिर्फ आपके पीजी में जा रहे हैं। एंड हियर IGDR में कुछ नहीं है, इतना सुंदर कैंपस, द ब्यूटीफुल, या one of the main reasons for me not choosing DSE also was that अगर उनका फीस रहा भी 10-15,000, the staying and खाने का फीस इतना बढ़ जाता कि सस्टेनेबल नहीं होता वो, एंड प्लस वहाँ पे कैंपस भी उतना है नहीं जितना IGDR में, IGDR का पूरा कैंपस लाइफस्टाइल है, रहो वहाँ पे, खाना खाओ, वहीं पे रहो, घूमो फिरो, तो that's the great thing. Pranav, you are also kind Gen Z because you are just 21, so I really don't understand how you matured you are, like 21-22 में people talk of ROI कि सर प्लेसमेंट है ही नहीं, दिल्ली में 40 लाख का DSE में प्लेसमेंट है, IGDR में 20 लाख का ही है, तो why not DSE and all. तो that clarity of thought you have, every time we cannot see only ROI in terms of you also see your health, your clean air, how near to your home, and how mentally you are happy, because happiness is something which doesn't come from getting CGPA and getting salary. Exactly. So we are talking for last 1 hour. I'm telling you, I am feeling very cool, calm, and very happy. First time we are meeting, still we are talking so long. Yes. So happiness is something very subjective. Definitely, sir. What you mentioned right now, it also is one of the reasons. It's that DSE का curriculum इतना rigorous है, plus staying away from my family, new place, new air, new type of temperature, and वो सारा, it would have been a lot of mental fatigue. True. And I wouldn't have been able to focus on UPSC as much as I wanted to, or even focus on extracurriculars. So I decided that IGDR is the place to be. I could be a more well-rounded person, develop my character, be academic, but also focus on other passions that I have. So that's why IGDR is. So that was a very fantastic session. Guys, we are not here like the demeaning and the thing. That's the reality. Since beginning I am telling you, if you are near to the Delhi या दिल्ली के आसपास हैं तो घर है आपका, you can see, you can afford, because आपको घर से आना जाना होगा, it's not a big deal. But people who come from outside, I would suggest, I'm not saying you should, but do your own homework. You meet to the Pranav, I will try to put his email ID in the description box, you can connect him, and thankfully for putting this much clear about what are the things there, because even I found कि publicly IGDR से related चीज़ें काफ़ी कम हैं, even on the YouTube and the online. तो you can make your own decision. Placements are there. The best part, placement का जो rate है, till last year it was out of 46 students, nearly 40 people got placed. तो placement ratio is definitely great in IGDR. दिल्ली में प्लेसमेंट ज़्यादा है, कोर्स करिकुलम अच्छा है, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, नो नीड टू कंपेयर, इट्स ऑल अबाउट योर ओन सब्जेक्टिव आइडिया। 19-20 का फ़र्क है।
तो टेक योर ओन डिसीजन यार. कोई अपने गांव में ही खुश है, कोई इग्नू से पढ़ के आईएएस बन रहा है, तो शी कैनॉट सजेस्ट यू गो एंड ज्वाइन इग्नू, because to become IES you have to join IGNOU. So it's every people have their own journey, so let's appreciate it, let's live it, no need to compare. So yeah, Pranav, any last words of advice you would like to say, and anything like we did not talk, please. The only thing I would like to say is that firstly, do not have any small minuscule amount of self-doubt. Don't doubt yourself. Don't doubt the teacher who's helping you study, and don't doubt the environment you're in. Because if you go in that cycle कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसे पढ़ाई की है, 3 महीना बाकी है, मैं इनसे पढ़ाई कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो you won't complete the exam for sure. Because तुम्हारा काम यही है कि तुम पढ़ो, तुम ये सब भूल ही जाओ कि यहाँ पे जाना मेरे को. तो one thing I will say is that in the beginning of it, what I focused a lot on is the reservation part of it. Because I am from general, and वो था कि मेरे दिमाग में था कि the good seats are around 100 only in DSC Nigeria. At that point और भी कम था. तो if at that point I had stayed more on it, like 100 सीट है, 20,000 बच्चे दे रहे एग्जाम, मैं कैसे आ सकता हूँ, 3 ही महीना बाकी है. लाइक फिजिकली मेरे मेंटली पॉसिबल नहीं था कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ मैं IJDR जा सकता हूँ. तो अगर मैंने और सोचा हो तो मैं डेफिनेटली नहीं जाता. So stop focusing on things that are unnecessary for you. Stop using social media at all because it is utterly useless for you when you're preparing for a competitive exam. Stop being surrounded by people who who are lazy. Surround yourself by people who have a decent work ethic, who make you study even harder. If you are surrounded by people who are disciplined, they make you yourself want to be disciplined, and that's how you grow. So don't have any amount of self-doubt. Trust yourself, trust the process, and trust your hard work. That in the end, your hard work will pay. That's the summary he think. Hard work has no substitute. And yes. Pranav, thank you so much yaar, being so much honest, so much depth we discussed. I rarely find people talking 1 hour and people will say कि ये लोग पागल हैं, 1 hour पे you are talking on CUET and we did not talk of any books. Everything is available. People know what to read and not. You will just search यार, जो आपको नहीं सर्च करना चाहिए still you search and you get. और आपको सिर्फ YouTube पे लिखना है best books for macro road development. So that's not a big task, but we talked all those parts which usually people don't think, and that is the solid mindset, positive mindset. I had a session with others, he also mentioned the same thing, that mindset matters. मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क करना होगा, बट पसीने निकलेंगे, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट कि सर टॉप 20 क्वेश्चंस बता दो, टॉप 50 टॉपिक्स बता दो जिससे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो अगर ऐसा रहता तो एग्जैक्टली ऐसा रहता तो एनटीए फिर मुझे ही बोलती कि आप ही सब कुछ देख लो, और मतलब समझ रहे हो, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा यार. एंड डोंट थिंक कि हमेशा सिर्फ लेक्चर्स से ही हो जाएंगे. It was also the luck. I'm telling you, Pranav, what our past, our forefathers, our parents wish for us, we pray for the God and all, that matters. That is reflected in our work ethics and result. So we should be thankful to our all elders, mentors, and the surrounding you told, that positivity wala. That's the luck. Luck is not something कि आपको बाजार में मिल जाएगी. Luck is the that output of those vibes we get. So that also help. So please follow the Pranav's words of advice. Do watch this lecture carefully and do suggest the people what to do. It's not कि something you may just quick fix. ये कर लिए हो गया. मेहनत करनी होगी. And if you have time, read books. Books been already suggested. तो Pranav, thank you so much यार. Hopefully we'll connect very soon. I am planning to visit IJDR. Means हैं some मेरे professors भी. If I visit there, definitely we'll meet and have a great celebration. क्योंकि मुझे आपके सामने एक केक भी काटना है. I will always remember कि birthday boy का result IJDR खाया था. And that is something I shared with my mom also. ठीक है, she actually watches my video, but I told कि प्रणव है, and on the birthday he got, क्योंकि उसके जस्ट लास्ट वीक 3rd of July को मेरा छोटा भाई का बर्थडे था. तो दैट सेशन वाज गोइंग ना, तो शी वाज रियली वेरी हैप्पी कि उसको ठीक है, इफ यू मीट एंड गो डेफिनेटली मीट हिम. डेस्टिनी था वो, फेरी टेल एंडिंग उसका हो गया था. यार थैंक यू सो मच प्रणव फॉर बीइंग दिस मच रॉ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, एंड यू अचीव एवरीथिंग व्हाट एवर यू कुड. एंड प्लीज एज यू सजेस्टेड कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एट कीप मेंटेनिंग दैट द thumbnail of rule of thumb of 50 pages. It will work everywhere in future. Even you write any exam, वो जो short notes है ना, that I called hacks,
वो मैंने भी बनाया था, इफ यू रिमेंबर कुछ पीडीएफ मैंने अपने भी शेयर किए थे, छोटे हाँ छोटे जी, थे. हाँ जी, सो दैट रियली वर्क्स ए लॉट. होपफुली पीपल विल रियलाइज ये सब्जेक्टिव है, हर के बस में नहीं होता वो छोटा नोट्स बनाना. इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड नो बडी कैन टीच यू. आई एम वेरी श्योर अभी बहुत से कमेंट आएंगे कि प्रणव भैया आप मुझे वो बता दो कैसे बनाना है, ये आपको खुद करना होगा. हाँ जी सर, सबका अपना अपना पर्सनल स्टाइल होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस वर्क फॉर मी, लाइक डूइंग 3-4 रिविजन अलग अलग कलरिंग से. इट हेल्प्स मी विजुअलाइज इट बेटर. किसी के लिए फ्लो चार्ट बेटर रहेगा, किसी के लिए ग्राफ बेटर रहेगा, किसी के लिए पीडीएफ बेटर रहेगा. डू व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू बेटर. आई कांट हेल्प यू विद दैट. ट्रू. तो प्रणव लाइक चलिए अब हम सेशन को रैप अप करेंगे एंड उम्मीद है कि इन कमिंग डेज मेक श्योर अगर कि आपके प्लेसमेंट्स तो लगेंगे 20 lakhs प्लस, मैं श्योर हूँ वो अपर साइड ही जाएगा. प्लेसमेंट्स आप पाओ एंड देन विल डू ए सेशन ऑन, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि पढ़ाई के बाद ये क्या कर रहे हैं. चलो ठीक है, सीयूटी में आपने डीएससी आईजीडीआर कर लिया, बिकॉज देर इज वेरी लैक ऑफ आइडिया कि जॉब किस तरह के जॉब मिल रहे हैं. एंड यू विल शेयर वंस यू ज्वाइन द जॉब किस तरह के जॉब हैं, क्या काम करने पड़ते हैं. बिकॉज गेटिंग 10 lakh 15 lakh जॉब इफ इट इज़ नॉट ऑफ योर ओरिएंटेशन या फिर उसमें ग्रोथ नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा. बेटर यू प्रिपेयर फॉर द अदर एग्जाम्स, ज्वाइन एकेडमिक्स एंड ऑल. तो दैट वी विल शेयर. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप टू मीट यू वेरी सून. ऑल द बेस्ट. Thank you sir, thank you.